हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर है, जिसमें हम आज 4th चैप्टर करेंगे, मेजर पॉलिटिकल थ्योरी। यानी अगर हम देखें तो प्रमुख जो है राजनीतिक जो है सिद्धांत दिए गए हैं, उस पर जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो +2 में हो, एनआईएस बोर्ड कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, बीए कर रहे हो, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर क्लास के बच्चे जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Most important chapter here, the major political theories. There is the first point here is come to the liberalism. The liberalism is the most point here. The liberalism is a fairly on the all political ideology. Its root can be traced to be a days of their 16th century. Since then, it is a pass through the numerous is a stage. The best turn is Englishment has refused to be accept is a moral goal and absolute truth. The English colorist is a revolution is a 6088 had a, as a demonstrate there is a diverse right of the king. The French Revolution gave to the Canadian as the idea of liberties and equality and fraternity. And the American War of Independence a little earlier, 1775 to here 76 led to the emphasis on the as a declarations of human right. First point is the mean of liberalism. The liberalism, what do you mean to liberalism? There's a Harlan is a Lux 6 is a English scholar of political science once wrote it is a liberalization. It is a not to be easily described. The liberalism is a not to be easily described, much less defined, for the hardly less habit of mind then is a body of the doctrines and doctrines is there. What is mean is the liberalism is a too dynamic and too flexible is a concept to give it the precise is a meaning. And yet their scholars has made to the attempt it they define it is a such three say that every simple liberalism is a theory and practice of individual liberties is a judicial and defense and there is a constitutional state. According to the coroner, is a liberalism is a begin and in the ideals of the individual freedom, individual human right and individual human happiness. The Ecopedias is a Brit Konka is defined to liberalism as an idea communities the freedom as a method and policy in a government, as organized a principle on society and as a way of life for their individual and community. The liberalism is a theory of reform from it has is a tool for the reform is economical, economic, social and political field. It is a theory of liberties is individually a liberts, individually autonomous for it has agreed to the favor of the development of human personality. It is a theory of democracy for it has a forever constitutionally is government. The government based on the concept of the people, rule of law, and decentralizations and free and fair of elections. To conclude, we maybe highlight the three
A sept of liberalism, which is the clear help us the understanding its mean. It is a social sphere. Liberalism stands for the secularism and society that oppose all kind of social discrimination in economic sphere. It is a favor of capitalistic economics. Individually is ownership of the mean of the production and maximum profit even of motives. In a political sphere, it stands for the democratics, political individual or right and liberties. And responsives, there is responsible of government, free and imperatives, judiciaries and the like. जैसा कि आपको दोस्तों पता ही है कि लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है जो है खुला कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उदारवाद नीतियाँ होती है। तो ये भी एक थ्योरी थी जिसमें हम उदारवादी के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा आज के जो चैप्टर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही कि हमारा जो चैप्टर है आज जो है प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो आ जाती है उदारवादी ही आती है। यानी देखा जाए तो लिबरलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारवादी एक काफ़ी पुरानी राजनीतिक विचारधारा है और इसके जड़ों को जो है 16वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है और इसके बाद से ये कई चरणों में गुजर चुका है। यानी ये कई चरणों में गुजरा है और कई चरणों में जो है इसकी बहुत सी बातें को जो है अलग अलग डिफाइंड भी की गई है। पश्चिमी ज्ञानोदय से नैतिक मूल्य को जो निरपेक्ष सत्य नहीं माना और इंग्लैंड की जो है गौरवमय क्रांति ने राजाओं को दैवीय अधिकार की जो है भर्त्सना की। फ्रांसीसी क्रांति ने जो है स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे के मूलभूत विचार दिए और इससे थोड़ा पहले अमेरिका जो है स्वतंत्रता संग्राम जो 1775 से 76 में मानव अधिकार की घोषणा पर बल दिया। अगर हम बात करें उदारवादी का अर्थ का, तो कहते हैं उदारवादी का अर्थ क्या है। कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंग्रेजी विद्वान हेरोल्ड स्लस्की ने एक बार लिखा था कि उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांत का एक समूह नहीं है, अतुल दिमाग की आदत है। यानी हमारी दिमाग की एक हैबिट है, एक आदत है। इसका अर्थ यह है कि उदारवादी इतनी गतिशील और इतनी लचीली अवधारणाएं हैं कि इसका कोई सूक्ष्म अर्थ ही नहीं किया जा सकता है। फिर भी विद्वानों ने इसे जो है प्रभावित करने का सदैव प्रयास किया है और प्रयास करने से जो है कहते हैं ना, जो प्रयास करता है उसे कामयाबी भी जरूर मिलता है। आप भी अगर प्रयास करो समझने का तो आपको जरूर समझ में आएगा और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लोगे। कहते हैं अगर साराटोरिस के अनुसार बहुत सरल ढंग से उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार के रूप में देखा गया। यानी अगर उदारवादी का अगर अर्थ आप जानना चाहो तो इतना आप समझ सकते हो कि राज्य का सिद्धांत और व्यवहार के रूप में जो है उदारवादी को रिप्रेजेंट किया गया। इसमें कॉर्नर्स के अनुसार उदारवाद का आरंभ और अंत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति के मानव अधिकार और व्यक्तिगत मानवीय प्रसन्नता के साथ ही होती है। इसमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उदारवादी को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि उदारवादी स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का एक विचार है और सरकार में एक नीति और प्रक्रिया, समाज में संगठन का एक सिद्धांत और व्यक्ति द्वारा समुदाय के लिए जीवन का एक ढंग के रूप में परिभाषित किया गया था। उदारवादी सुधारों का एक सिद्धांत है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के प्रति जो है समर्पित रहता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सिद्धांत है क्योंकि इसमें मानव व्यक्तियों के विकास के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। यानी देखा जाए तो उदारवादी का मतलब यही होता है कि व्यक्तियों के जो विकास है वो भी व्यक्तिगत, उनमें काफ़ी जोर दिया जाता है। और एक सिद्धांत ये जो भी कहते हैं कि आर्थिक, समाज और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए भी समर्पित होते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सिद्धांत भी उदारवादी के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं अगर ये लोकतंत्र का सिद्धांत भी माना गया है क्योंकि यह संवैधानिक सरकार लोगों की सहमति पर आधारित सरकार होती है। यानी सरकार को चुनने का अधिकार जनता की होती है और जनता के जो है सहानुभूति से ही चुनी जाती है। कानून का शासन, विकेंद्रीकरण और निष्पक्ष चुनाव पर बल सदैव देते हैं। हम जो है उदारवादी के तीन पक्षों को रेखांकित कर सकते हैं जो उसके अर्थ को समझने में हमारी सफल सहायता कर भी करते हैं। समाजी क्षेत्र में उदारवादी धर्मनिरपेक्ष तथा एक ऐसे समाज का समर्थन भी करता है जो सभी प्रकार की सामाजिक भेदभाव का सदैव विरोध भी करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर जो है निजी स्वामित्व और अधिकतम लाभ कमाने के पक्ष लेते हैं सदैव। राजनीतिक क्षेत्र में यह जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता पूर्व जो है अनुक्रियाशील और उदारवादी सरकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था इत्यादि का जो है सदैव समर्थन भी ये करते हैं।
The our next topic is a feature of liberalism. What is feature of the liberalism? The liberalism is the most important feature here. We might be identity as content characteristics of liberalism. There's the characteristics of feature are here. The first here, the individuality of liberties. Is a liberalism is a stimuli on the ideology of liberty. It's a love for individual liberty is unquestionable, and it's a become of liberalism is for the liberals is a liberties. It's a very essence of the human personality. It is a mean to one as a development. And next here, individually centered theory. The center theory here, liberalisms begin and the end with the individually. For the liberals, is the individually is the center of all the activity. The focal point individually is the end, will all other is a association including the state or the means which exist for the individually, and individually is the center around which all things move. That is the most important. And next here, the capitalistic economics. The liberalism is a advocate is a free market is economics. There is the liberalism is a advocate of free market economics. It is a capitalistic as a mode of economics. It is a beliefs in the private property system regarding to the property right as a exclusive and the maximum profit as the only motive. And capitalism is the mode of production and distribution as the only is a essence. The market force are controlling mean of economics. And next year, a limited state. The liberalism is advocated. There is a concept of limited state. The liberals view that the state is a mean to the attaining the goods of individual. There, I suppose, of every types of totalitarian state is a totalitarian state. They are of the opinion that a move to powerful state mean a less free individually. Other lux used by say that because the function of the state are limited, so are limited its a power. And next year is opposed to be traditionally is a superstitions. As liberalism rose as a reaction is against traditional superstitions, it is by their nature and opposed to be all the reactive nationality is measuring liberalism is emerging from the rationalities and deformations stool and actually stand for the reason and the rationalisms. As against the federal mode of man is opposed to being to liberalism is a favor as a model of man and who is a more active and more equitability. The next here is democracy. The democracy liberalism is exponent of the democratic government. It is seek to be establish a government of the people by their people and for the people. A government that functions according to the constitution and constitutionalisms. A government that is uphold the rules of law. A government that scares right and liberties of the people. The liberalism is a MC govern. Say it is a combination and democracy and individualism. There is the most important. The next topic here, there is a welfareism. The welfareism here, the liberalism is closely associated with their welfareism. The welfareism as a state activity is the idea that a state work for the welfare of the people. The liberals is a concept of the state activity ones where the state serves the people. In other words, the welfare state is a social service state. The next is the weakness of liberalism. There is an important topic there of weakness of liberalism. The liberalism has its own inherent defect. It is a philosophy full of tensions. On the one of the hand, it is a unfolded there are flag and liberties, and there other it is a agrees for the equalities. On one hand, it's a work within the framework of the market society. It is a promise the equal opportunities to all. The one hand, it is a ask the unlimited right to be acquire properties, and on the other, it is a seek it is a demand share of profit for the welfare of those and there's a who are the unemployed and the needly. On the one hand, it is a builds as a capitalistic economics ending up to the ultimate in the inequalities. And the inequalities and so on there are that is a in the endeavors to be establish the intellectualism in societies.
यदि बात यहाँ पर अगर हम करें उदारवादी की विशेषता, तो कहते हैं उदारवादी की विशेषता अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो उदारवादी का जो हमने विचारधारा रखा था वो हमारा अधूरा रहेगा। हम जो है उदारवाद के कुछ गुणों का पहचान कर सकते हैं जो कि यहाँ विशेषताओं के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं अगर पहली बात हम करें तो ये आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है हर एक व्यक्ति का जो है परम अधिकार है। कहते हैं उदारवादी अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता का सिद्धांत है। कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रति जो है इसके प्रेम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। ये स्वतंत्रतावाद बन चुका है और उदारवादी के लिए स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का सार भी है और यह व्यक्तियों के विकास का एक साधन के रूप में भी देखा जा सकता है। बात करें व्यक्ति केंद्रीय सिद्धांत, यानी व्यक्ति केंद्रीय सिद्धांत क्या है। कहते हैं उदारवाद का आरंभ और अंत व्यक्तियों के साथ ही होता है। उदारवादियों के लिए व्यक्ति जो है सभी गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु होता है और व्यक्ति साध्य है, जबकि राज्य सहित अन्य सभी संस्थाएं साधन है जो व्यक्तियों के लिए ही है और व्यक्ति केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सब चीज़ें घूमती ही रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर व्यक्तिगत चीज़ है तो उसके इर्द गिर्द ही सारी व्यक्तित्व घूमती ही रहती है सदैव। यदि बात करें अगली पॉइंट का, तो यही बात यहाँ दर्शाया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी उदारवादी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते उदारवादी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। ये तो आपको भी समझ है, उदारवादी का मतलब ही होता है उदार भावना, जो मैंने पहले ही आपको बताया, जिसमें जो है अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग भी लिया जा सकता है। कहते भारत में ट्रेड करने के लिए जो है सरकार की तरफ से उदारवादी नीति का ही जो है अनुसरण किया गया था, जिसमें जो है बहुत से ट्रेडरों को जो है फ्री में व्यापार करने की इजाज़त दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजों को भी कुछ हद तक ऐसी सुविधा दी गई थी। उसके बाद जो है अंग्रेज ने भारत पर कब्जा करने के लिए एक अधिकार बना लिया था। तो वही बात यहाँ आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी जो उदारवादी का अपना एक विशेष स्थान होता है। उदारवादी मुक्त बाजार व्यवस्था की जो है सदैव वकालत करता है, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है मुक्त बाजार का भी यही है। कहते हैं निजी संपत्ति व्यवस्था में विश्वास करता है, संपत्ति के अधिकारों को अति पावन और अधिकतम लाभ को एकत्र लक्ष्य उत्पादन और वितरण के जो है पूंजीवादी प्रकार के सार तत्वों और बाजार की जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने का साधन भी ये मानता है। यदि बात करें हम अगली पॉइंट का, तो ये साफ शब्दों में हो सकता है कि सीमित राज्य। कहते हैं उदारवादी सीमित राज्य के सिद्धांतों की वकालत करता है, यानी राज्य जो है सीमित होनी चाहिए। ये जो है सीमित राज्य की वकालत करता है उदारवादी नीति। उदारवादी राज्य की व्यक्तियों की भलाई का एक सबसे बड़ा साधन माने जाते हैं। वो प्रत्येक सरकार की सर्वशक्तिमान राज्य का विरोध करते हैं और इसका विचार है कि राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होगा व्यक्ति उतना ही कम स्वतंत्र होगा। इसमें लॉक ने भी अपना शब्द यहाँ रखा था कि क्योंकि राज्य का कार्य सीमित है इसलिए इसकी शक्ति भी सीमित होनी चाहिए। ये कॉल का जो है अपना विचारधारा था। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है परंपराओं अंधविश्वासों का विरोध। कहते हैं उदारवादी अगर देखा जाए तो पुराने परंपरा और अंधविश्वास को सदैव ही नकारा है। कहते हैं उदारवाद का उदय परंपराओं और अंधविश्वासों के विरोध प्रतिक्रिया के स्वरूप सदैव हुआ है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की जो है प्रतिक्रियावादी उपायों के विरुद्ध है। क्या कहते हैं पुण्य जागरण एवं धर्म सुधार से प्रकट भी हुआ है। उदारवादी तर्क और विकेंद्रीशील का समर्थन भी रहा है। मनुष्य के समांति प्रतिरूप में निष्कर्ष होने के विपरीत उदारवाद ऐसे प्रतिरूप का समर्थक है जो अधिक सक्रिय एवं जो सृजनात्मक हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उदारवादी का जन्म जो हुआ है परंपराओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध हुआ है, यानी ये सदैव ही आगे खड़ा है इन अंधविश्वासों और परंपराओं के रिगार्डिंग। अगली बात अगर हम करें तो ये जो है लोकतंत्र। कहते हैं लोकतंत्र जो हमारी देश भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। उदारवादी लोकतंत्री सरकार का जो है प्रतिपादक है और ये ऐसी सरकार स्थापित करना चाहता है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में जो लोकतांत्रिक देश हमारा भारत जो है सदैव सशक्त रहा है। एक ऐसी सरकार जो संविधान और संविधानात्मवाद के अनुसार काम करे, जो कानून के शासन को जो है प्रोत्साहित करे और लोगों को अधिक और स्वतंत्रता की जो है रक्षा भी करे। इसमें मैक गवर्नेंस का कथन था कि उदारवादी लोकतंत्र और व्यक्तित्ववाद का एक मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष लोक कल्याणवाद। देखिए उदारवाद लोक कल्याणवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है और राज्य का लोक गतिविधियों के रूप में कल्याणवाद का विचार है कि राज्य लोगों की कल्पना के लिए कार्य सदैव करता रहता है
और राज्य की गतिविधियों के जो उदारवादी अवधारणा है यह है कि राज्य लोगों की सेवा भी करता है और दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य का समाज सेवी राज्य भी होता है। यानी लोक कल्याणवाद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें उदारवाद लोक कल्याणवाद निकटता से जुड़ी रहती है और ये सदैव ही उदारवादी जो है अवधारणा को अनुसरण भी करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उदारवादी की कमजोरियाँ। देखिए, अगर हम उदारवादी के बारे में जाने हैं तो उदारवादी की विशेषता भी किए हैं और अर्थ भी किया है, तो उदारवादी कुछ कमजोरियां भी जान लेना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं उदारवादी कुछ जो है अंतर्निहित त्रुटियां भी है और यह तनावों से भरा हुआ दर्शन भी है, यानी तनाव से भरा हुआ ये विचारधारा है। एक तरफ तो स्वतंत्रता का ध्वज फहराता है, दूसरी तरफ ये समानता की बात भी करता है। एक तरफ ये जो है बाजार आधारित समाज के ढांचों में काम करता है, दूसरी तरफ वो सबको सामान्य अवसरों का वादा भी करता है। एक तरफ तो यह संपत्ति ग्रहण करने से असीमित अधिकारों की मांग भी करता है, तो दूसरी ओर यह जरूरतमंदों और बेरोजगार लोगों को कल्याण के लिए लाभ में से कुछ हिस्सा मांगता भी है। एक तरफ तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के निर्मित करता है, अंततः असमानता की ओर भी ले जाता है, और दूसरी तरफ यह समाजवादी समाज की स्थापना करने का भी प्रयास करता है। तो देखा जाए तो जो उदारवादी कुछ कमजोरियां हैं जो कि काफ़ी इसकी विशेषताओं को जो है खंडित करती है, लेकिन फिर भी उदारवादी जो है काफ़ी अलग है और उदारवादी के विषय में जानना भी आपके लिए काफ़ी रोचक रहा होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है जिसमें हम आगे सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे, तो हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगर आप देखिए, इसमें जितना हो सके आपने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है कहते हैं, और साथ में आपको इंपॉर्टेंट कार्य ये भी करना होता है कि जितना हो सके दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचाने का कोशिश करना है, चाहे वो जैसे पहुंचाना है, आपसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो दोबारा अगर सर्च करोगे तो शायद ये टॉपिक से आपको ना मिले। तो इसलिए जो है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने से ही आपको जो होगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।